Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is probability mass function. Probability mass function, बड़ा important topic. The probability mass function of the discrete random variable x is shown as this. इसका ये मतलब है, p का मतलब है probability. कैपिटल x वो रैंडम वेरिएबल है और स्मॉल x उसकी पॉसिबल वैल्यूज को डिनोट कर रहा होता है. ठीक है, तो पी एक्स ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स. कहीं पे लिखोगे पी एक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स. राइट, सो लेट मी शो ओवर हियर. आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट, तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, हेड या टेल. अच्छा जी, अब आपने रैंडम वेरिएबल बनाना है, फॉर एग्जांपल एक्स. ठीक है, और आप कहते हैं जी हेड को मैं देता हूँ 1 और टेल को मैं कह देता हूँ 0. ये आपकी मर्जी है, या आप कोई भी कर सकते हैं, 1 -1 भी कर सकते हो, कोई और नंबर भी असाइन कर सकते हो. ठीक है, ये तो मैपिंग आप कर रहे हो. अब आपने क्या की बनाया, एक रैंडम वेरिएबल बना दिया पी एक्स ऑफ एक्स. ठीक है, और आप कहते हो जी फेयर कॉइन है. आप कहते हो कि ये फेयर कॉइन है, तो पी एक्स ऑफ 0, इसका क्या, ये आप क्या लिखोगे, 0.5. इसका क्या मतलब है, पी एक्स ऑफ 0 का, यहाँ पे चेक करें, प्रोबेबिलिटी that the random variable x is having a value of 0. इसका क्या मतलब, probability that random variable x is having a value of this small x. तो probability p x of 0 जब आपने लिखा है, इसका ये मतलब है what is the probability that the random variable x, जिसकी possible values में 1 और 0 आते हैं, what is the probability that random variable x is having a value of 0. तो अब मैंने क्यों किया, ये फेयर कॉइन है तो क्या होगी 0.5. ठीक है, सो ये इस नोटेशन का ये मतलब. Note that x, capital X is equal to small x is an event consisting of all outcomes of the underlying experiment for which x of s is equal to x. On the other hand, p x of x is a function ranging over all real numbers x. For any value of x, the function p x of x is the probability of the event that x is equal to x, जो मैंने अभी बात की. ठीक है, we usually use the corresponding lowercase letter to denote the possible value of the random variable. ये जो small value आप कहीं पे, ये जो small x देख रहे हैं, ये उसकी possible value जो है ना उस random variable की, उसको denote कर रहा होता है. The notation for the PMF is the letter P with subscript indicating the name of the random variable. Therefore, P capital R of R is the notation for the PMF of random variable R. ये random variable R को denote कर रहा होगा, ये small r उसकी possible value को denote कर रहा होगा. Right? So ये notation से वाकिफ होना जो है बड़ा जरूरी है. Pay very close attention to this example. For example 2.5. Example 2.5 जो है आपने की, what is the PMF of R? What is the PMF of R? Right? तो example 2.5 जो थी, उसके अंदर ये था कि आपके पास 3 किस्म की कॉल्स आपके पास आ रही थी. ठीक है, एंड आपने उन कॉल्स में डेटा कॉल भी पॉसिबिलिटी थी और वॉइस कॉल की भी पॉसिबिलिटी थी, और आपने कहा था कि जी ऑल पॉसिबल कॉल जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वली लाइकली हैं. राइट, all possible calls are equally likely. So let me show you this example. This is example 2.5. So आपके पास 3 किस्म की 3 कॉल्स आपने जो रिसीव करनी है, जिसमें वॉइस कॉल की पॉसिबिलिटी है, डेटा कॉल की भी पॉसिबिलिटी है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ कॉल्स आर इक्वली लाइकली. देयरफॉर 1/8 is the probability of each of them. Right? So we are supposed to make a PMF of this. So PMF जब आपको एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको PMF ही समझ आ जाएगी कि PMF क्या चीज. We see that R is equal to 0 if either outcome DDD or VVV occurs. R 0 कब आ रहा था इसमें, R 0 आ रहा था जी जब आपके पास तीनों की तीनों डेटा कॉल्स थी या तीनों की तीनों वॉइस कॉल्स थी, तब तब आपका R is equal to 0 आ गया. ठीक है, तब आपका r is equal to 0 आता है. So when r is equal to 0, you are either having all 3 as data calls or all 3 as voice calls. So what is the probability that r is equal to 0? That would be equal to 1/4. That would be equal to 1/4 because there are only 2 events out of 8 events. ठीक है, there are only 2 possibilities out of 8 possibilities जिसमें r is equal to 0 r. इसके अलावा r की क्या पॉसिबल वैल्यू है, 2, और कोई r की पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं. राइट, तो r इज इक्वल टू 0 की क्या आएगी, 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4. और द अदर 6 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट r इज इक्वल टू 2. इसके अलावा r की क्या पॉसिबल वैल्यू है, r इज इक्वल टू 2. तो कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें r जो है वो 2 आ सकता है, 1 2 3 4
5 and 6. So 6 out of 8. 6 out of 8. So 6 by 8 is a probability that R is equal to 2. So PMF का ये मतलब है कि आप ये मेंशन करते हैं कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। ये जो आप एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं इसको कहते हैं पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो शो हो रही है। ठीक है, मैथ फंक्शन का मतलब है कि उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका जो फंक्शन बन रहा है ईच पॉसिबल वैल्यू पे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की। तो ये आर जो था आपका, ठीक है, इसकी ओनली टू पॉसिबिलिटीज बन रही थी, आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 2। और फॉर आर इज इक्वल टू 0 द प्रोबेबिलिटी इज 1/4, फॉर आर इज इक्वल टू 2 द प्रोबेबिलिटी इज 3/4। सो दिस इज एंड 0 अदरवाइज, ये भी आपने लिखना है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इसकी है नहीं। 0 और 2 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए आर की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दिस। ठीक है, बिकॉज दिस इज गिविंग द कंप्लीट डिपिक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल आर। सो दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को आप जो है वो ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप शो करेंगे कि उसकी पॉसिबल वैल्यूज आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर इज इक्वल टू 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/4। आर इज इक्वल टू 2 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4। ठीक है, तो ये आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी है, एक्स एक्सिस पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल है। दिस इज ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, राइट। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन क्या चीज है जी, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी का लिखना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन कहलाता है, राइट। Let us do the next example. When the basketball player Will Chamberlain shot two free throws, each shot was equally likely either to be good or bad. ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर है जी, ये दो फ्री थ्रोज जो है वो कर रहा है। हर शॉट जो है वो इक्वली लाइकली है कि वो गुड है या बैड है। ईच शॉट दैट वाज गुड वाज वर्थ 1 पॉइंट, जो गुड शॉट है दैट इज वर्थ 1 पॉइंट। व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ एक्स? अब आप रैंडम वेरिएबल एक्स बना रहे हो, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज स्कोर्ड। देखें, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम है कि आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपने क्वेश्चन को पहले समझना है वो क्या कह रहा है। ठीक है, आपने देखा जी बास्केटबॉल प्लेयर और कुछ बात हो रही है, एकदम से ज़हन में सवाल है कि यार मुझे तो बास्केटबॉल आती नहीं। ठीक है, ये बंदा कौन है? ठीक है, या आप ये वाली चीजें स्किप कर जाओगे और बस एकदम ये जो नंबर्स हैं इनके ऊपर गौर करने लग जाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं चलना, क्वेश्चन को रिलैक्स होके समझना है, पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बात हो रही है कि बास्केटबॉल प्लेयर है, टू फ्री थ्रोज कर रहा हो, ये इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टू फ्री थ्रोज, और हर थ्रो जो है दैट इज आइदर गुड, जिसे आपने जी से डिनोट किया है, या बैड हो सकती है जिसे आपने बी से डिनोट की। ठीक है, अच्छा, और साथ क्या इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है कि वो इक्वली लाइकली। हर स्टेटमेंट में, उसकी हर वर्ड में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि आपकी हर शॉट जो है, जो कि टोटल दो शॉट्स हैं, ईच शॉट इज आइदर गुड विच इज जी और बैड विच इज बी। एंड सिंस दे आर इक्वली लाइकली, इसका मतलब कि गुड शॉट और बैड शॉट की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। ईच शॉट दैट वाज गुड वाज वर्थ 1 पॉइंट, और ये इंफॉर्मेशन दे दी गई कि जो गुड शॉट है ना उसकी जो वर्थ है वो बता दी गई है कि वो 1 पॉइंट। अब मैंने पीएमएफ बनाना है एक्स का, और एक्स रैंडम वेरिएबल इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज स्कोर्ड, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज स्कोर्ड वो एक्स है। ठीक है, देयर आर 4 आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हमें ये पता लगा कि इस एक्सपेरिमेंट के टोटल 4 आउटकम्स हैं। कैसे 4 आउटकम्स हैं? ठीक है, बिकॉज वो टू शॉट्स थ्रो कर रहे हैं और हर शॉट में दो ऑप्शन है, गुड और बैड, तो 2 की पावर 2 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें। ठीक है, पहली क्या है जी, गुड गुड, कि दोनों शॉट्स उसकी गुड है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि पहली गुड है दूसरी बैड है। थर्ड पॉसिबिलिटी कि पहली बैड है और सेकंड गुड है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों की दोनों उसकी बैड शॉट्स हैं। अ सिंपल ट्री डायग्राम इंडिकेट्स दैट ईच आउटकम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो एक ट्री डायग्राम से हमें पता लग रहा है कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ट्री डायग्राम नहीं भी बनाओगे ना तो हमें आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4। ठीक है, क्योंकि इक्वली लाइकली हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हमें पता लग रहा है भाई ये 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज 4 आउटकम्स। रैंडम वेरिएबल एक्स जो है उसकी 3 पॉसिबल वैल्यू।
ठीक है, has three possible values corresponding to three events. रैंडम वेरिएबल क्या था? वो था नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट ही स्कोर्ड. तो मुझे बताओ, जब गुड गुड है, जब गुड गुड है तो पहले गुड का एक पॉइंट, दूसरे गुड का एक पॉइंट, वैल्यू क्या आती है? 2. गुड बैड का क्या मतलब है कि टोटल पॉइंट कितने स्कोर किए उसने? 1. बैड गुड में उसने टोटल पॉइंट्स कितने स्कोर किए? 1. बैड बैड में उसने टोटल पॉइंट्स कितने स्कोर किए? 0. तो 0 इन दो के लिए 1 और इसके लिए 2. तो इसका मतलब 0 1 एंड 2, 0 1 and 2, these are the possible values of the random variable. These are the possible values of the random variable, right? The random variable has three possible values corresponding to the three events. X is equal to 0 कब है? जब दोनों की दोनों बैड शॉट्स उसने खेली, इसका मतलब तब इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी. 1 उसकी वैल्यू कब आएगी? या जिसमें पहली गुड और दूसरी बैड शॉट, या पहली बैड और दूसरी गुड शॉट होगी, तब उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो उसकी 1 आएगी. X equal to 2 कब आएगी? जब दोनों की दोनों वो गुड शॉट्स खेलेगा. Since each outcome is a probability of 1/4, these three events have the probabilities. Probabilities कितनी बनी? X equal to 0. इसकी क्या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है? 1/4. X equal to 2 यानी गुड गुड की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/4. हाँ, X इक्वल टू 1 जो है वो तब आता है जब पहली गुड दूसरी बैड हो, या पहली बैड और दूसरी गुड हो. ठीक है, सो 2 out of 4 यानी कि 1/2 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग X इक्वल टू 1. तो व्हेन आई मेक अ पीएमएफ ऑफ दिस, मैंने जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उसकी लिखनी है. कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं. X इक्वल टू 0 1/4, X इक्वल टू 1 के लिए 1/2, X इक्वल टू 2 के लिए 1/4 एंड 0 अदरवाइज. ये मैंने पीएमएफ बना लिया जी इस क्वेश्चन. ठीक है, और ये हमने उसको ड्रॉ भी कर दिया. 0 के लिए 1/4 है, 1 के लिए 0.5, 2 के लिए 1/4. देखें, आप इसको सम करें, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 0. ठीक है, यू गेट 1. ठीक है, तो आपका एक रैंडम वेरिएबल है. आपको आपने पीएमएफ बनाया है, कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि मैंने पीएमएफ सही बनाया है कि नहीं? तो वन पॉसिबल वे इज कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उनको सम करो. जवाब अगर 1 आता है, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो प्रोबेबिलिटी जो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए ना उस रैंडम वेरिएबल के एक्सपेरिमेंट के लिए. ठीक है, सो आप उसको सम करें, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इफ द आंसर इज 1, इसका मतलब पीएमएफ आपने सही ड्रॉ किया. ठीक है, सो क्या था जी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. एक बास्केटबॉल प्लेयर था और उसकी कुछ शॉट्स और उसके कुछ स्कोर था, और आप आइडेंटिफाई कर रहे थे एक रैंडम वेरिएबल. आउटकम क्या था? नंबर ऑफ पॉइंट. देखो ये क्या है? मैपिंग ऑफ एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो प्लेयर है जो कि खेल रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट है, और नंबर ऑफ पॉइंट्स उसमें स्कोर करने हैं, और उसे आपने क्या किया? उसको मैप कर दिया रियल नंबर पे. ठीक है, दैट बिकेम अ रैंडम वेरिएबल, एक्स बिकेम अ रैंडम वेरिएबल, और उसकी पॉसिबल वैल्यूज थी 0 1 एंड 2. और आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, और आपने एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में उसको लिख दिया, एक पीस वाइज इक्वेशन लिख दी, दैट इज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन. The PMF contains all of our information about the random variable. जो PMF है वो रैंडम वेरिएबल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है. Because Px of x is the probability of the event that capital X is equal to small x. Px of x has a number of important properties. The following theorem applies the three axioms of probability to discrete random variables. अच्छा, क्योंकि PMF जो है वो क्या चीज है? वो आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है. तो इसका मतलब इसको जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी जो कि हमने जो एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से उससे को मिलती जुलती होंगी. तो थ्योरम है, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x with a PMF of this and some range for any x, probability x, capital X of small x is always greater than equal to 0. ठीक है, तो वही जो हमने 3 एक्सियम्स पढ़े थे, उन्हीं उन्हीं पे मैप कर रहे हैं हम बेसिकली इस पीएमएफ को. क्योंकि पीएमएफ प्रोबेबिलिटी है, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू की जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. फर्स्ट एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ मैप करें. ठीक है, तो उसमें क्या था कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. उसके बाद सेकंड एक्सियम आपको याद है कि वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1. ठीक है, उसी चीज को अगर पीएमएफ के ऊपर मैप करें तो क्या है जी? अगर आप सम कर दें ओवर ऑल द सैंपल स्पेस, ठीक है, ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, यू विल गेट 1. जो अभी बात की कि जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को सम करो, द आंसर शुड बी इक्वल टू 1. थर्ड, फॉर एनी इवेंट बी दैट इज अ सबसेट ऑफ this sample space, the probability that x
is in the set B is, तो प्रोबेबिलिटी B जो कि एस एक्स का सबसेट है, ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी के वो एक्स सेट बी के अंदर है, वो क्या होगी कि आप सम कर दोगे जितनी वैल्यूज है उनका, जितनी वैल्यूज आपकी बन रही हैं उनका आप सम कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बी जो है वो इवेंट होता है 0 एंड 1, 0 एंड 1, तो आप इसमें सम क्या कर दोगे 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, ठीक। तो दिस इज द थ्योरम। नेक्स्ट इज क्विज 2.2। The random variable n has a PMF shown as this। एक रैंडम वेरिएबल n है और उसका PMF यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c, प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल N इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी दैट n इज ग्रेटर देन 3। So this is the quiz that we are going to solve। तो इस क्वेश्चन में, इस क्विज में एक रैंडम वेरिएबल n है और उसका PMF गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जांपल्स में पीएमएफ जो है वो बना रहे थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पीएमएफ गिवन है और हमने प्रोबेबिलिटीज या एक पहले पार्ट में हमने कांस्टेंट वैल्यू जो है सी निकालनी है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर है देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्विज 2.2, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये देखो जो पीएमएफ गिवन है यहाँ पे, ठीक है, उसमें कांस्टेंट यहाँ पे उसने दे दिया है और पहले पार्ट में उसने ये कह दिया कि भाई कांस्टेंट जो है ना, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट उसको फाइंड करो, ठीक है, वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट जो है उसको फाइंड करो, ठीक है। To find C, we recall that the of the PMF must sum to 1। तो PMF जो है ना, PMF में जितनी वैल्यूज आ रही होती हैं उनको अगर सम करें तो जवाब आना चाहिए 1, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू है इसकी c/1, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू है c/2, n इज इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू है c/3, ठीक है। और मुझे ये पता है कि पीएमएफ में जितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हो उनका सम करें तो जवाब आता है 1, ठीक है। तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, सी यानी 1/c प्लस c/2, सॉरी, c प्लस c/2 प्लस c/3, दैट शुड सम टू 1। तो c कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रॉम दिस यू कैन इजीली फाइंड दैट c इज इक्वल टू 6/11, c is equal to 6/11, ठीक है। यू हैव टेकन द एलसीएम और फिर आप उसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा। तो 6/11 है जी सी की वैल्यू। कैसे फाइंड की, बिकॉज अगेन आई रिपीट कि जो पीएमएफ में जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम करें तो जवाब 1 आना चाहिए। और गिवन क्या है कि वैल्यूज क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू है c/1, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या वैल्यू है c/2, n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या वैल्यू है c/3। सो इफ आई सम ऑल ऑफ दीज द आंसर शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, c प्लस c/2 प्लस c/3 शुड बी इक्वल टू 1, c को कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसको सॉल्व किया एंड यू गेट 6/11। सो 6/11 इज द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल c, ठीक है। नेक्स्ट है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल N इज इक्वल टू 1, कैपिटल N इज इक्वल टू 1। कैपिटल N इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब, Pn ऑफ 1, Pn ऑफ 1, इसका ये मतलब है कि रैंडम वेरिएबल कैपिटल N इज इक्वल टू 1, दिस इज द वैल्यू, मीनिंग ऑफ दिस। कैपिटल N इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा जी सिंपली आप मालूम करना चाह रहे हैं c/1 की वैल्यू, यानी c की वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन, right? That should again be equal to 6/11। पार्ट 2 है जी, पार्ट 3 है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कैपिटल N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये जवाब कब आएगा, जब आपका n की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी, क्योंकि n की वैल्यू जो है मैक्सिमम 3 तक जाती है। तो आपने जब पूछा प्रोबेबिलिटी दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो उसमें 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा Pn ऑफ 2 प्लस Pn ऑफ 3, that should be equal to c/2 plus c/3। c की वैल्यू आपको पहले ही पता है, put the value of the c, you will get the answer 5/11 in this case। लास्ट पार्ट है जिसका, what is the probability that capital N is greater than 3, what is the probability that capital N is greater than 3। तो मुझे बताएं
केस में 3 इंक्लूडेड नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखा, n इज ग्रेटर देन 3 लिखा है। तो पीएमएफ में तो क्लियरली पता है भाई, अदरवाइज जो है 3 से ऊपर जो भी वैल्यू उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इक्वल टू 3 नहीं है, n इज ग्रेटर देन 3 का मतलब 4 या 5 या 6, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, द आंसर शुड बी इक्वल टू 0, right? So this is a topic of probability mass function.